آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتا ہے۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتے ہیں۔ سارے ائمہ کا فتویٰ یزید کافر و فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤں کن کن سے حسینی حسینی حسین۔ دیکھیے یہ دیوبندی ہے نا، واللہ بتا رہا ہے، مجھے ایک ہفتے سے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میرے پاس بہت ساری حدیث ہے اس میں جو اس کے خلاف بڑھنے کی بات جو کہے نا، کوئی صحابی ہمت ہی نہیں کیا بڑھنے کی بات۔ جب عمر جب بڑھی رہتی نا تو ان کو بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے پیش کیا کرتے تھے، لیکن یہ دیوبندی اپنے قاسم نانوتوی دھرنے سے یہ اردو میں لکھ دیا کہ برابری ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث تو میرے پاس بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں۔ جی جی، اصل میں اگر میں اس لیے مجھے وہ ہو گیا تھا کہ اس میں جو یہ تفسیر نعیمی وغیرہ کا حوالہ بھیجا تھا نا، میں کہا تھا اس سے بھائی نعیمی میں جو جلد اول ہے نا، جی جی، کون سا جلد ہے وہ؟ جی میں جلد تو دیکھا نہیں، اس سے کون سا جلد تھا، میں صرف عبارت دیکھا تھا بس۔ وہ میرا پرسنل بھیجیے، وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے اگر نبوت اگر ملتی عبادت کرنے سے، عمل کرنے سے، تو شیطان کو ملتا کیا ہے نا، تو وہی تو لیکن عمل کرنے سے تھوڑی ملتا ہے۔ ہاں لیکن شیطان کو کیوں ملتا ہے؟ جب یہی تو وہ بول رہا تھا، یہی تو میرے سمجھ میں، اگر شیطان کو ملتا تو کیوں ملتا؟ نبوت کرنے کی وجہ سے ملتا تو شیطان کو کیوں ملتا؟ کیوں؟ تو اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ عبادت بہت زیادہ کیا ہے۔ اچھا، مطلب عبادت جو ہے مطلب بہت زیادہ کیا نا، بہت زیادہ کیا، حدیث میں بیان بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کو۔ تو قصبی یہ نبوت جو ہوتی ہے قصبی نہیں ہوتی، یعنی عمل سے نہیں ملتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، سمجھے؟ اب یہ بات رہا کہ یہ انبیاء، تمام انبیاء کو شمار کیا ہے، یہ بتائیے امتی، یہ انبیاء اپنی امت سے، انبیاء لکھا، نبی نہیں لکھے، ہمارے نبی کے بارے بات نہیں کر رہے ہیں یہ صرف۔ تو بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ہزاروں سال، اور پہلے کے انبیاء کتنے تھے، کتنی عمر کی تھی، اور ہماری کتنی عمر ہے ابھی؟ جی جی جی، رات دن بھی عمل کرے تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہم لوگ، گنتی بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ میں تو حدیث پیش کرتا لیکن آپ کاٹ دیے فون۔ اچھا میں تو بولا جائے بہت وقت ہو گیا مجھے صبح کا۔ دیکھیے کہ میرے پاس حدیث بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مشکاہ شریف تمام میں سامنے رکھ لیا تھا اس کو دکھانے کے لیے۔ سنن ابو داؤد شریف کا 6 کتاب کا رکھ لیا ہوں میں سامنے۔ اس کو پھر کسی دن لائن پہ لوں کیا حضرت؟ دیوبندی وقت کافی 11:30 بج گیا ہے۔ دیکھیے دھوکہ دیتا ہے وہ لوگ، عبارت کو ادھر ادھر پیش کرتے رہے گا، حدیث کی طرف نہیں آئے گا وہ۔ اسی لیے تو میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں کہا کہ میں اپنے کسی عالم سے بات کراؤں گا، میں عالم نہیں ہوں، اسی لیے میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ مجھ سے ہفتے سے کہہ رہا تھا، مجھ سے کہا کہ کیسے بریلوی ہو تم جواب نہیں دے سکتے۔ میں کہا کیا ضروری ہے کیا ہر جو ہے عوام جواب دے دے؟ نہیں، عوام کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ جو یہ دیوبندی جو ہے حدیث کے خلاف، بہت کثیرہ حدیث کے خلاف ہے، یہ جو لکھا ہے نا یہ عبارت سراسر کفر ہے، ایک دم کھلے حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ جی 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 جی، تو اللہ رب العزت سے آپ ایمان کو ثابت قدم رکھیں، ڈال مٹول علماء کرام سے رابطہ کریں۔ اور رہی بات تو وہ عبارت جو پیش کیا ہے نا اس کو میرا پرسنل بھیجیے، ابھی بھیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں آپ کی یوٹیوب پہ وائس سنا نا جب، تو میں کہا کہ آپ سے جو ہے نا اس کا بات کرانا بہتر رہے گا۔ میں نے آپ کا نمبر تلاش کیا تو نمبر کسی گروپ میں کسی نے آپ کا نام لیا، اختر نظامی ایسا کچھ کر کے۔ نہیں، وہ مجھ سے بہت بھاگا ہوا ہے، بہت بار ذلت و رسوائی اٹھایا ہے، لیکن توبہ نہیں کیا وہ، اور کرے گا بھی نہیں، اسی مر جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے حضرت، میں نے آپ کا ماشاءاللہ قریب 1 گھنٹے کا وقت ضائع کر دیا، میری وجہ سے آپ کا وقت ہوا۔ میں آپ کو ضائع نہیں کیے، یہ حدیث اور قرآن کی جو باتیں اور عبارت کو سمجھنے کی توفیق دی ہے اللہ رب العزت نے، اس کا بھی اجر دیا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ اور آپ کو حقیقت روشناس ہو گیا، دیوبندی کا فریب آپ کو معلوم ہو گیا۔
जी 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 ठीक है, इंशाल्लाह मेरे नंबर सेव कर लीजिए, अगर कोई जरूरत हो, कोई देवबंदी परेशान करे तो मुझसे रब्ता कर लीजिए। जी जी जी, अगर ये दोबारा फोन करेगा तो फिर मैं हाजिर आपसे वक्त लेकर इसको फोन करवा। ठीक है, आपका इसमें शरीफ क्या बोले थे जी? आपका नाम क्या बोले हैं? अनस रजा कादरी। अनस रजा कादरी साहब, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम से अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नबूवत नहीं देता, बल्कि अल्लाह का फैज होता है, वो अल्लाह का फजल होता है, समझे। अब इसमें ताज़ीरुन्नास में बसा औकात लिखे हैं, बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं। ये हदीस और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। एक दो हदीस नहीं, मैं तो अभी लादना शुरू कर दूंगा इसमें, देखिएगा अभी। नहीं, फोन बराए मेहरबानी काटना नहीं, मुकम्मल हदीस का हवाला सुन के जाओ और देवबंदी को लात मारना, तौबा करना। चलो जवाब दो। मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, खाली एक बात, हदीस पढ़ने से एक बात सुन लो मेरा। मैं बोल रहा हूँ, क्या जो अंबिया अलैहिस्सलाम विसाल के बाद, दुनिया से पर्दा करने के बाद जो इबादत करते हैं, क्या उसके मुकल्लफ हैं? वो मुकल्लफ नहीं है। आप जिंदा मानते हैं क्या? नहीं, या मुर्दा मानते हैं? नहीं, मेरे वो बात नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अंबिया या औलिया शहीद जो भी विसाल के बाद जिनके मुतालिक नमाज पढ़ना साबित है, सिर्फ नबी की बात करें, नबी की बात करें। मेरी बात, अरे यार बोल रहा हूँ, सुन ना, किसके मुतालिक साबित बोल रहा हूँ मैं। चलो अंबिया ले लेते हैं, अंबिया के मुतालिक जो बात साबित है कि विसाल के बाद नमाज पढ़ते हैं और तवाफ करते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या वो उसके मुकल्लफ हैं शरीयत के? अगर कहोगे वो नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, समझे, मुकल्लफ है कि नहीं है? वो है कि नहीं उसके? उन पर फर्ज है या नहीं फर्ज है, उनको सवाब देता है या नहीं देता है? आप कहते हैं सवाब नहीं देगा उनको, उस पर जजा नहीं मिलेगा उनको। हजरत बता देना कि मतलब जो हजरत देवबंदी सवाल कर रहा है, ये बता देना कि वफात के बाद जो अंबिया मतलब कहते नमाज वगैरह पढ़ते हैं, वो मुकल्लफ है कि ये नहीं मुकल्लफ है, ताकि मेरे इल्म में भी आ जाए। देखिए जनाब, अगर वो पढ़े या नहीं पढ़े उनकी मर्जी है, इसलिए कि वो आज़ादी है उनकी, समझे, समझे। लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, काफिर का लफ्ज निकाल रहे हो, शर्म आती है। नबी की बात चल रही है और लफ्ज बोलने भी नहीं आता है, तुम मुफ्त के मुनाजिर क्यों हो यार? अंबिया की बात चल रही है और कुफ्र के निकाल रहे हो, शर्म आती है। और रही बात कि मुकल्लफ और गैर मुकल्लफ का, समझा, मुकल्लफ और गैर मुकल्लफ का बात कर रहे हो कि अंबिया किराम के कभी भी वो इस दारे फानी से जब पूछ करते हैं और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना चाहे उतना सुलाए रखा और फिर हमेशा के लिए उसको जिंदगी अता फरमाया। ठीक, कहाँ बात कहा तुमको? आप समझो, ये बात मुकल्लफ है कि नहीं है मिसाल के बाद? मुकल्लफ और गैर मुकल्लफ में क्यों पढ़ रहे हो आप, जबकि नबी के बराबरी का बात है ये। अरे जनाब, ये तुम्हारे अकाबीर ने कहा छोड़ा है कि नबी के बराबर हो जाते हैं और मसावी हो जाते हैं, तो वो सवाल तो हदीस और कुरान में हमें मिल रहा है, हदीस की रोशनी में कसीर दलाइल मिल रहे हैं। मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे इस सवाल का जवाब दो दोनों मुनाजिर, कि जो ये तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि अगर तफसीर नईमी की बात ही खत्म कर दी है, नबूवत, उसको फिर क्या चढ़ रहे हो यार? हजरत मेरी बात देखो, लाहौल वला कुव्वता, आपका वहाँ पर अमल से किसी को नबूवत नहीं मिलती, उसका रद्द है वो। अफजल देवबंदी तुम खामोश रहो, जवाब मिलेगा आपको, तुम खामोश रहो। मैं ये समझना चाहता हूँ हजरत कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर नबूवत अमाल से मिलती तो शैतान या फरिश्ता नबी होता। शैतान या फरिश्ता कैसे नबी होता है? मुझे ये समझना है कि वहाँ तो जनाब देखिए, आपका नाम क्या बताएं? जी, अनस रजा कादरी। वहाँ तफसीर नई में अनस रजा साहब जो लिखे हुए हैं, अगर अमाल के दारो मदार पर अमल करने से अगर इबादत और अमल में तमाम चीज आते हैं, रियाजत, अमल, जिक्र, अज़कार तमाम आ जाएंगे। अगर इसके करने से नबूवत मिलती तो शैतान को मिल जाता है, क्यों? तो बात साबित हो रही है हजरत कि साबित शैतान और फरिश्ते का अमल आपसे ज्यादा है, लाहौर नमल से ज्यादा नहीं है। वहाँ पर कैसे अपने तरफ से निकाल रहे हैं? ये गलत है, अपनी जहनियत ना दौड़ाएं इसमें। ये अजाजील जो है
हदीसों में आता है, हदीसों में आता है अगर उसके फरिश्ते, अगर शैतान के सजदे को, रियाजत को, सजदे को अगर जमीन में फैला दिया जाए तो जमीन में राई रखने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक। लेकिन उसमें साफ लिखे हैं अमल के करने से नबूवत नहीं मिलती। नबूवत तो खास खुदावंद कुद्दूस का फजल है, वो समझे। हुआ है कि अमल के करने से अमल के नबूवत नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। अमल से नबूवत मिलती तो शैतान या फरिश्तों को नहीं मिलती। क्यों? तो इसलिए कि शैतान का इबादत का जिक्र वहां पर हदीसों में बिखरे पड़े हुए हैं कि इतनी रियाजत किया है, वो इतनी नमाजें पढ़ा है। हजरत ठीक हमारा इतना खत्म हो गया। आप कह रहे थे हदीसों में उसकी रियाजत का जिक्र है, मतलब ये बात हदीस से साबित है कि क्या कहते हैं कि हदीस जो है शैतान अमल में ज्यादा है, फरिश्ते ज्यादा है, फरिश्ते ज्यादा है। आप उसकी तरफ अगर वो इससे कहेंगे जैसे कि देवबंदी आपने निकाला है। अब हजरत देवबंदी, अब मैं अपने हजरत के सामने रखती हूँ, हजरत आपको समझाएंगे, मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे आइंदा फोन मत करना हजरत देवबंदी, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे हजरत तुम्हारा जवाब दे नहीं पा रहे, हमारा क्या जवाब? या अल्लाह जवाब दे दिया, उसका जवाब दे दिया जनाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबूवत जो है अल्लाह का फजल है, समझे। इबादत से नहीं मिलती, बस खत्म हो गई उसके बाद। लेकिन तुम्हारे मौलवी जो लिखे हैं उम्मती मसावी हो जाते हैं, नबी के बराबर हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। इसका जवाब तुम नहीं दे रहे हो। हदीस पेश करो, हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो हदीस पेश करो। जवाब दूं जी, हदीस पेश कीजिए, हदीस या कुरान की आयत पढ़े जनाब। तुमने एक बात कही कि अंबिया विसाल के बाद नमाज करते हैं, आप भी करते हैं, तवाब भी करते हैं। सुनो मेरे पास, हाँ जी, मुताला करो, जवाब दे रहा हूँ, समझ रहे हो जी सर। जवाब तुम सुनने के ही हाँ भरे हो तो सुनो। तुमने कहा कि अंबिया जब इंतकाल के बाद, विसाल के बाद हज करते हैं और कई हज किए तो उम्मती से बढ़कर क्यों ना हुआ? तो उस पर मैंने सवाल कायम किया था, अंबिया अलैहिस्सलाम का विसाल के बाद इबादत करना, क्या वो इबादत के मुकल्लफ हैं? क्या वो इबादत के मुकल्लफ विसाल के पहले थे? ये जवाब चाहिए मुझे। अच्छा, अगर आप ये कहना चाहते हैं असगर देवबंदी साहब, आप ये कहना चाहते हैं विसाल के बाद अगर अंबिया नमाज ना पढ़े तो उस पर उनके क्या कहते हैं पूछताछ की जाएगी? नहीं पूछ की जाएगी। असगर देवबंदी, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके नामे अमाल पे वो गिनती बढ़ रही है या नहीं? तुम जवाब दो। अच्छा, इस साल के बाद किसी के अमल का नेकी मिलता है क्या? तुम उसको नेकी मिले या न मिले, और अंबिया को जरूर मिलती है हर एक सवालात का उनका। अगर हम विसाल के बाद अगर दीदार करें तो हमारे मुशर्रफ तकदीर संवर जाते हैं। तुमको ये भी नहीं मालूम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दीदार कर ले तो मन रआनी, जिसने मुझे देखा, फिल मनामी, ख्वाब में, समझे, तो उसने मुझे ही देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे ही देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो गोया के हक देख लिया, समझे। इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल को सूरत का बना नहीं सकता, ठीक। ये हदीसों में बात है। अब रही बात कि अंबियाए किराम की इबादत जो कर रहे हैं बादल विसाल, उनके नामे अमाल में वो गिनती में है या नहीं? तुम जवाब दो। हदीस में आता है जब इंसान इंतकाल करता है तो उसका तमाम आमाल मुनक़ता हो जाता है। मुनक़ता हो जाता है ना, वो मुनक़ता हो जाता है ना। लेकिन असगर देवबंदी, दिल में हाथ रख के सोचो, सवाब खत्म हो जाता है। अरे बात तो फिर सुनो, अमल का सवाब मुनक़ता हो जाता है, अमल का कोई सवाब नहीं मिलता सिवाय 3 अमाल के, सदका जारिया, नेक औलाद को छोड़ना, या कोई नेक काम जारी कर दिया, पानी वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो 3 चीजें हैं जो सदका जारी तो फिर कर गया उसका सवाब मिलता है। बाकी इंसान जब इंतकाल करता है उसका अमल का सवाब नहीं मिलता। ये हदीस है कि नहीं है? हाँ, हदीस है कि नहीं? ये भी हदीस है, उसमें सवाब मुनक़ता हो जाते हैं उम्मतियों के लिए, और उम्मती के लेवल में आप नबी को खड़ा कर रहे हो। रही बात तुम्हारे कासिम नानवी जो साहब लिखे हैं, बसा औकात उम्मती से मसावी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हदीस के भी खिलाफ है ये, समझे। क्यों? इसी में बात करो ना, अपने अकाबिरीन की इबारत की दिफा के लिए आए हो। दिफा कर रहा हूँ। हाँ, करो। कैसे मसावी, कैसे बराबरी होंगे और कैसे बढ़ेंगे आप बताएं।
हाँ सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब कोई इंतकाल करता है तो फिर वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, तो सवाब तो होता है। सवाब और अजाब में छोड़ दो, सवाब और अजाब को छोड़ दो किनारे, असगर देवबंदी, सवाब और अजाब को रहने दो। अब मसावी गिनती में भी नहीं हो सकता। तुमको सिर्फ खलते मत करना है क्या? खलते मबस नहीं, तुम बेकार की मौजू से हट रहे हो ना। मेरी बात सुनो, मौजू से हटो नहीं, गिनती वन गिनती साबित करो हदीस से। अमल जो है, अमल का मुकल्लफ जो है इंसान इंतकाल से पहले तक का है, इंतकाल के बाद अमल का मुकल्लफ नहीं है। यहाँ जो बात लिखी गई है इंतकाल के पहले की बात है, न कि इंतकाल के बाद की बात है। यहाँ कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ तहजीरुन नास में तुम्हारे उम्मत बज़ाहिर, हाँ सुनो मेरी बात सुनो, हाँ वो हवाला पेश करो, तहजीरुन नास का हवाला पेश करो। हाँ सुनो, जब अमल की बात आई है, अमल इंतकाल से पहले तक की है, इंतकाल के बाद नहीं करेगा इंसान उम्मती। अब जब उम्मती इंतकाल से पहले अमल करेगा तो बात साबित हो गई कि इंतकाल से पहले चाहे अंबिया का अमल हो चाहे उम्मती का अमल हो, बसा औकात बज़ाहिर अमल में उम्मती नबी से बढ़ जाता है। अपने मनगढ़ंत देवबंदियत का दज्जालियत मत दिखाओ, समझे? बात मुकम्मल करने दो। पीछे क्यों, तुम्हारी आदत है क्या बड़बड़ करने की? बोलो, तुम बीच में खलल करते हो ना, तुम करते हो और मौजू से हटते हो। हाँ, अमल की बात चल रही है, अमल का मुकल्लफ उम्मती इंतकाल से पहले न कि इंतकाल के बाद, ठीक है। अब इसी को सामने रखने की बात की गई है। देखो, इसका मतलब तुम्हारा उसूल ये है दिल्ली का कि काइल ही अपने कौल का मतलब बेहतर समझ सकता है, न कि दूसरा। हाँ, तो वही पेश करो, वही काइल जो है तहजीरुन नास का अपने वो जो पेश किए हैं वो तहजीरुन नास का हवाला दें जनाब, कहाँ से ये ये हमारे अहले सुन्नत की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तहजीरुन नास का हवाला। आप खामोश रहें जनाब, आप खामोश रहें। आप कासिम नानतवी साहब की वो जो बयान किए हैं बराबरी का और बढ़ने की बात कहे हैं, तहजीरुन नास का हवाला दें। मैं हदीस वरना पढ़ना शुरू करूंगा अभी मैं। पता है तुम कहाँ से पढ़ोगे जी? जाल हक से पढ़ोगे तो मुझे पता है कहाँ से पढ़ोगे। सुनो, एक हवाला दे रहा हूँ, एक किताब जाल हक देवबंदियों से लाजवाब सवाल। सुनो, देवबंदियों से लाजवाब सवाल। अरे आपने कहा है अभी उकाइल जो बयान करता है वो अच्छी तरह से जानता है और उसको बयान करता है, तो तहजीरुन नास की इबारत का हवाला पेश करो कि उसके जो इसके मतलब वो समझाए हैं, क्या समझाए हैं बताएं तहजीरुन नास की इबारत पेश करें। मैंने कहा तुम्हारा वसूल ये है कि हर शख्स जानता है कि मुसन्निफ अपनी मुराद को बखूबी जानता है। हाँ, वो मुसन्निफ क्या वो इबारत पेश करें। हाँ, एक किताब है तहजीरुन नास पढ़ो यार। मैंने कहा तुम्हारा वसूल है, तुम्हारा वसूल तहजीरुन नास में है। अरे तहजीरुन नास की वो जो उसके जो ये मतलब समझाए हैं, इसके बारे में जो ये बात लिखे गुस्ताखी, वो उसकी तस्लीह किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है बयान किए हैं, तो उसको पेश करो। तो मैं तो कहा तुम्हारा घर का वसूल ये है कि काइल ही अपने कौल का मुराद बेहतर जानता है, वो दूसरा खास वो मुराद अच्छे जानते हैं ना, तो उसको पेश करो। तहजीरुन नास पढ़िए। मैं तुम्हारा वसूल कहा, मेरा वसूल नहीं कहा, तुम्हारा वसूल ये है, तुम समझने तो नहीं कर रहे हो। देखिए असगर देवबंदी, अच्छी तरह से तुम वाकिफ हो, तुम जानते हो ये गुस्ताखी है और हदीस के खिलाफ है। हदीस पेश करूं अब मैं? हदीस पढ़ूं? हदीस के खिलाफ है ये। या तो असगर देवबंदी सीधी तौबा कर लो, वल्लाह बता रहा हूँ, हदीस के जो खिलाफ है। असगर देवबंदी साहब, दोनों हजरत मेरी बात सुने, आप भी मेरी बात सुनो। हजरत ये कह रहे थे कि मैं जो असगर देवबंदी ने मुझे भेजा था एक हवाला, मैंने कहा था जब मैं अपने हजरत से बात करवाऊंगा तो उसमें जो है ना हजरत इसके जवाब जो है ना मैं आपके मुंह से देखिए जनाब, मैं बता रहा हूँ ये देवबंदी लोग, ये सुनिए, ये गौर से सुनिए। मैं मुतमईन हूँ हजरत, देखिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए। एक सहाबी ने हदीस में मौजूद है हजरत जी, ये हजरत देवबंदी का समझ में ना आए ना आए,
वो बात की बात है, लेकिन जो इसने मेरे के हमारे अकादर अहले सुन्नत की किताब से हवाला भेजा है, इसका जवाब इसको अजगर देवबंदी को वो कर दे दे ताकि मैं इससे मुतमईन हो जाऊँ। इसने भेजा था फजल कदीर तर्जुमा तफसीर कबीर, मुहक्किकुल अज़्र मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब, तस्लीम इमाम फखरुद्दीन मोहम्मद उमर राजी साहब। इसमें लिखा हुआ है, अजगर देवबंदी ने इसमें कहा था कि देखो हमें तस्लीम उनकी मशक्कत कसीर है, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि लाजिम तौर पर इनका सवाब भी अक्सर है। इसलिए हमारे बाद सूफिया मुजाहिदा में इस कदर मशक्कत और तकालीफ उठाते हैं कि किसी ने उनमें से बात भी नहीं उठाई, हालांकि हम कई तौर पर जानते हैं नबी उनसे अफजल है। इसमें अजगर देवबंदी ने कह रहा था कि सूफिया मुजाहिदे में इतनी मशक्कत और तकलीफें उठाते हैं कि किसी नबी ने भी नहीं उठाई। तो ये मुझसे कह रहा था कि किसी नबी ने भी मतलब इतनी मशक्कतें नहीं उठाई है मुजाहिदे में जितने की बात सूफिया कलाम ने यहाँ उम्मती ने उठाई है। और यहाँ पे एक बार ये भी लिखा हुआ है कि किसी नबी ने नहीं उठाई, नहीं उठाने का यहाँ क्या कहते हैं कि इनकार है। देखिए जनाब वो तो हदीस के मुआफिक है, समझे। देखिए जनाब, आप जो पढ़े ना वो असहाबे सुफ़ा की मिसाल सामने में रखिए। असहाबे सुफ़ा जिनको कपड़े की भी मुयसर नहीं होती थी, खाने पीने का भी मुयसर नहीं होता, बिल्कुल मुजाहिदे में तकलीफ इतने उठाए थे। उससे मतलब ये नहीं है कि उसमें गुस्ताखी पाई जा रही, जा बजा करके खींच खाच करके मुश्किलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी में ला करके डालना, यह असहाबे सुफ़ा उस वक्त हदीसों में मौजूद है। अब रही बात ये ताज़ीरुन नास की इबारत, तो नबी की बराबरी करना। अभी हमारे हजरत ने जो तुमको ये हवाले का जवाब दिया है असहाबे सुफ़ा के ताल्लुक से, इसका जवाब दो। और रही बात असगर देवबंदी, आप खामोश रहे जनाब, वो जो बात तवील हो जाएंगी, इसलिए ताज़ीरुन नास की इबारत ही पर मैं बात करूंगा। अभी असगर देवबंदी आप गिनती में अजगर देवबंदी का जवाब देने दो, जो आप मेरे हजरत ने देखो जवाब दिया है कि यहाँ असहाबे सुफ़ा मुराद हैं, ठीक है। आप जवाब दो, अजगर देवबंदी का जवाब दो। मुराद असहाबे सुफ़ा मुराद है, लेकिन फिर भी यही बात है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ज़रा मुशक्कत दिखाया उन्होंने। हालांकि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी तकलीफ इस तरफ रख दी जाए और तमाम उम्मती और अंबिया की तकलीफ इस तरफ रख दी जाए, मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। ये हदीस है, तो फिर हाँ हदीस है बिल्कुल। पढ़े इबारत पढ़े जनाब, है इबारत पढ़े। अच्छा ये हदीस है कि नहीं बताया आप पहले बताया। आप इबारत पढ़ो, हवाला दे रहा हूँ, हमसे पूछ रहे हो। नहीं मेरी बात नहीं, और तू मैं नहीं करना चाहिए, जो हवाला पढ़ रहे हो साफ पढ़ो। और तुमको मैं अरबी इबारत पढ़ करके हदीस सुनाऊंगा। अभी ये हदीस है, हदीस आपने हदीस का मफ़हूम बयान किया है। हाँ मफ़हूम बयान किया मैंने। हाज़िर ये जो हदीस का मफ़हूम बयान नहीं, मफ़हूम वगैरह नहीं चलेगा इसमें। बात हवाले जात जो देते हैं असगर देवबंदी वो पढ़ो तुम, वरना इसी ही कहा के मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कहा के अपनी लफ्जों में ढालने की कोशिश करोगे। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबअहु मक़अदहु मिनन नार के मिज़दाक ना बनो, समझे। हदीस पढ़ो, तुम मुनाजिर हो तो हदीस पढ़ो। ये अब रही बात वो मुशक्कत की बातें। अरे खामोश रहो यार, मैंने जो बात पढ़ी थी कही आपको कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तकलीफ और तमाम उम्मत तकलीफ अगर सब कर दी जाए तो मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या ये हदीस है कि नहीं, अल्लाह के नबी ने बयान किया कि नहीं बयान किया? असगर देवबंदी साहब यहाँ किताब जो आपने हवाला दिया था यहाँ सूफिया लिखा हुआ है। हाँ वहाँ सूफिया लिखा हुआ है, वहाँ सूफिया से मुराद वो कह रहा है कि जो असहाबे सुफ़ा है, तो क्या असहाबे सुफ़ा जो जाता है वो कहाँ की बात है, किसने कहा था असहाबे सुफ़ा के मुताबिक? देखिए असगर देवबंदी मौजू से भागो नहीं, मुझे आदत नहीं इधर उधर खिचड़ा पकाने की, समझे। तुम तहज़ीरुन नास ओनली बन तहज़ीरुन नास में बात करो और इसको हदीस के मुआफिक साबित करो, है ना। मौजू से भागो नहीं। और तुम मौजू से देखो, तहज़ीरुन नास मेरी आदत से ये है कि तहज़ीरुन नास बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। ये हदीस के खिलाफ है। और हदीस कम से कम अभी 10-15 मैं हदीस ला दूंगा तुम पर अभी। हाँ तो वहाँ जो सूफी की बात बताई है कि उनकी अब इसमें बात करो, उसको छोड़ दो, उसको समझे कि तुम मसावी नबी के बराबरी कैसे
है ना। और नबी से बढ़ने की बात जो कहे हो, सहाबी किसी सहाबी का अकीदा नहीं था, लेकिन वहाबी अकीदा बनाया है जनाब। तो हदीस के खिलाफ, कसीरा हदीस और सही हदीस के खिलाफ है ये। सहाबे किराम तो अपनी उम्र को भी बराबर नहीं बताते थे, बड़े होकर के भी, समझे, अपनी उम्र को कम बताते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैं छोटा हूं कहते थे। और अब हालांकि मैं पैदाइश में पहले हूं, लेकिन मेरी उम्र, मैं उनसे बड़ा नहीं, मैं छोटा हूं कह के, लेकिन तुम्हारे कासिमुल उलूम वल खैरात कहते हो, कासिम शर्म आनी चाहिए। और इसको अपने अकाबिर बना के रखे हो, बराबरी का और बढ़ने की बात कहा है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दिल धड़कता, दिल रोता है हदीस को देख करके, कैसे देवबंदी बना है पता नहीं। अभी हदीस में सुनाता हूँ, सुनो गौर से, बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो। मैं हदीस वल्ली बन तुमको हदीस और कुरान पढ़ के सुनाऊंगा और इसको गलत साबित करूंगा। मैं इधर उधर की उर्दू किताबें तुम्हारे छोड़ो, नहीं अब तुम में नहीं, हदीस के खिलाफ और कुरान के खिलाफ है ये। ही हंसने से काम नहीं, जो हदीस और कुरान के नहीं है वो दुनिया के किसी का नहीं है। बुखलाए नहीं, तुम देवबंदी हदीस और कुरान के नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मैं दावे के साथ सीना ठोक के बयान करता हूँ। कौन कुरान का नहीं है? मैं तो कुरान की आयत ही सुनाऊंगा अभी। तुम्हारा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी, वो उर्दू की किताबें इधर उधर रख दो, समझे, और हदीस पढ़ो। नहीं सुने यार, तुम्हारे आलिम हदीस के खिलाफ लिखी बात। अरे यार मसहबी बराबरी के बराबरी लिखे हैं, अंबिया किराम से बराबर हो गए क्या करके हमारे। मैं देखो जनाब असगर देवबंदी, कोई भी सुन्नी का एक आदना जो तालिबे इल्म है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी की बात नहीं करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन तुम लोगों के अकाबिरीन जो है कितनी बड़ी गुस्ताखी की है, जो हदीस के खिलाफ है। एक दो हदीस नहीं, मैं अभी आपको फोन मत काटिएगा बराए मेहरबानी। बुखारी शरीफ की हदीस और साहिसिता की हदीस पेश करूंगा इंशाल्लाह। तुम हवाला पेश करो, अपने सफाई, इसी में सफाई पेश करो, यही बात। हाँ बोलिए। तुमने ये बात कही कि तुम्हारे आलिम ने नबी अलैहिस्सलाम के बराबर कर दिया, बराबर ना? तो नबी अलैहिस्सलाम के बराबर करना गुनाह है कि नबी अलैहिस्सलाम के बढ़ा देना गुनाह है कि नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम के बराबर कर देना, तुम उस कह रहे हो कि तुम्हारे बहुत तकलीफ हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया, बराबर नहीं बढ़ा दिया, ये गुनाह है कि नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। बार बार यही मैं पढ़ते रहूंगा, तुम इसकी सफाई पेश करो हदीस और कुरान की रोशनी में। तो नबी से बढ़ा देना तुम्हारी गुस्ताखी है। तो मैं बिल्कुल गुस्ताखी है, अमल में भी किसी तरह से नहीं बढ़ सकता। सुनो यार, हाँ सुनो, तो लिख रहा है तुम्हारे यहाँ कि एक नबी से जो है उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम में नबूवत मौकूफ नहीं, उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। अरे गैर नबी, देखो असगर देवबंदी धोखा देने की फिर कोशिश कर रहे हो तुम। अभी ये इबारत को काट करके पढ़ रहे हो तुम। किन उलूम में नबूवत मौकूफ नहीं है, वो काट के पेश कर रहा है, ये धोखा दे रहा है देवबंदी कसम। मुझे यहाँ आप दोनों ये समझाएं कि किन उलूम पर देखिए, नबूवत के लिए जो इल्म जरूरी है ना, वो चीज नबूवत के लिए जरूरी है, और दूसरे जो गैर जरूरी है उसका शुमार ही नहीं, उसको हटाइए। लेकिन नबी की बात अमल में, इल्म में, मसलन कौन सा मतलब इल्म है? अंबिया के लिए जो उलूम होते हैं ना, जो पाक दाम, जैसे शेर वगैरह के लिए तो इनका कुरान से साबित है। अब रही बात इसमें जो तहजीरुन नास में जो बात किए हैं ना, हम इल्म की बात में मुमताज होते हैं। कौन सा इल्म? अरे यार बताओ, शेर का इल्म, समझा दे जाओ। शेर का इल्म, शेर बनाते हैं ना, शेर और शायरी करते हैं। शेर की शेर नहीं शार अशार होते हैं, शेर की जमा अशार, समझे? शेर बोले तो शार बोलना चाहिए ना। शार नहीं होता, अशार होते हैं। तुम क्या उर्दू भी बोलने नहीं आता है यार तुमको? वाहिद होते हैं शेर,
शीन ऐन रे शेर, हंसो नहीं, तुम आता नहीं, शार बोल रहे हो, खुद आता नहीं और चले आए मुनाकरा कर। अब देखिए असगर देवबंदी, जब तुम अच्छी तरह से समझ गए हो कि ये गुस्ताखी पर मबनी है और हदीस के खिलाफ है, मैं हदीस पढ़ूंगा अभी मैं, अब तुम ये इबारत को सफाई पेश करने के लिए हदीस और कुरान पढ़ो। देखिए मेरे पास बात कीजिएगा तो ठोस दलील से बात कीजिएगा। अरे यार फिर क्या अशार सही नहीं है? तुम क्या पढ़े, लफ्जों में मत जाओ। असगर देवबंदी तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है और तुम कहे हो शार कहे हो, गलत ताबीलात पेश करके भाग रहे हो तुम, गलत ताबीलात। कुरान में क्या नहीं है क्या? तुमने कहा शार, तुम बोले हो शार, तुमने शेर बोला, तुम्हारी मैंने इस्लाह करके शार कहा, मैंने शार कहा। शार होता है, कौन से लोगों में पढ़े हो? मैंने वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया, तुमने जमा का सिगा इस्तेमाल किया। अब वहाँ में तुम, वो शार होता ही नहीं है। अरे यार फिर अशार जो है, अशार ये जायज है? अशार बोल रहा है, अभी ठीक बोला है नहीं, उसको असगर देवबंदी छोड़ दो उसको, इस इबारत की सफाई पेश करो। छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, तुम लफ्जों में क्यों जा रहे हो? तुम अपने अकाबिरीन के ये इबारत को सफाई पेश करोगे या नहीं? अरे नहीं, वही मौजू चल रहा है यार, वही मुझे चल रहा है। मौजू से हटिए नहीं, इधर उधर के तूल तेवालत मत कीजिए। कौन सा उलूम है जो नबी के लिए जायज नहीं, दूसरे के लिए जायज है? वो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, दूसरे के लिए जायज है, कौन सा उलूम है वो? फिर बार मैं बोलते रहूँ उसी जो नबूवत से जिनके लिए जरूरी है, समझे, वो उलूम उनसे ताल्लुक है। अब किन किन चीजों के लिए, क्या क्या चीजों के लिए, तो उसको वो जाने, लेकिन कुरान में आयत जो मौजूद है अशार का इल्म। मेरी बात सुनो यार, वो कौन सा उलूम है जो नबूवत उस पर मौकूफ नहीं, नबी के लिए जायज नहीं, उम्मती के लिए जायज है? उम्मती बढ़ सकता है उसके लिए, उम्मती बढ़ सकता है नहीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों उसमें जा रहे हो तुम इधर उधर की बात? गैर नबी बढ़कर गैर नबी हो सकता है, बढ़कर गैर नबी हो सकता है। फिर वो मौकूफ को छोड़ रहा है, ये आधी इबारत को धोखा दे रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। असगर देवबंदी साहब, लिखा हुआ है कि जिन असगर देवबंदी साहब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं, उन उलूम में गैर नबी बढ़ सकता है। हाँ, नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। हाँ, जिन उलूम में नबूवत मौकूफ नहीं है, हाँ, तरक्की पा सकता है, उसमें तरक्की पा सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है। बढ़ने का मतलब यही है, बढ़ने का मतलब ये है। तो मैं भी माना लूंगा ना, बढ़ना, कामयाबी होना, तरक्की हासिल करना। तो हमने समझाए वो कौन सा उलूम है जो गैर नबी, जो नबी के लिए जरूरत नहीं है नबूवत के लिए, गैर नबी उसको पा करके बढ़ सकता है, कामयाबी हासिल करके तरक्की पा सकता है? कौन सा उलूम है वो? कौन सा उलूम है वो? जा तुम गिनते रहो उसको, लेकिन तुम वॉइस रिकॉर्ड भी ज्यादा हो रहा है। तहजीरुन नास में जो लिखा, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं नहीं, और तू नहीं, जो सफाई पेश करनी है तुझे, उधर तूल तेवालत में मत जाओ। कुरान में तो लिखा, साफ बयान किया है, अशार का इल्म उससे नहीं दिया गया, ठीक। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशार पढ़ रहे थे। हेलो, एक मिनट, देखिए आप लोग माशाल्लाह जो है काफी देर बात किए। ये जो मेरा इश्काल है कि जैसे तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि अगर नबूवत अमल से मिलती तो शैतान और फरिश्ते को मिलती, इसका मतलब यहाँ ये होता है कि शैतान और फरिश्ते को नबी से ज्यादा अमल है। मेरे मतलब क्यों निकाल रहे हैं आप? कौन से निकाले हैं उसमें? अपने तरफ से मतलब आप ना निकाले। अख्तर निजामी किया है कि अगर फैला दी जाए पूरी जमीन भर जाती, न बढ़ जाती, लिखा हुआ है। इतना मारता अभी सामने रहता, झूठ बोलता है मत। झूठ क्यों बोलते हो यार? 11:15 बज गया। देखिए इसे सरासर हदीस के खिलाफ है ये, समझे। और हदीस तो बहुत मेरे पास कम से कम
10 हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, सुनो और ये सुनो, ये नबी के बढ़ने की बात क्या है ना, तौबा कर लो असगर देवबंदी, वल्लाह ये हदीस के खिलाफ है। सुनो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुनो हदीस सुनो, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदुकुम अनफक़ा मिस्ला अहदिन अज़हाबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। हदीस सुनो यार, हदीस के दुश्मन देवबंदी हदीस के दुश्मन होता है। लाहौल बुखारी शरीफ की हदीस में पेश कर रहा हूँ जो देवबंदी सारे बुखारी के भी खिलाफ है, वल्लाह बता रहे हैं।